Hello students, today we will do part 7 of coordination compounds. Now I have told you that in bonding of coordination compound we will do Werner theory of coordination compound, valence bond theory and crystal field theory. In the last video we have completed Werner theory of coordination compound. In today's video we will do valence bond theory. So let's start with it. Valence bond theory was given by L. Pauling in 1930s. According to this theory, complex is formed when metal, ion or atom provide its empty orbitals to accommodate the lone pair from the ligands. And these empty orbitals before participation in bonding they get hybridized. And the type of hybridization depends on the nature of the metal and the nature of the approaching ligand. हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर और साथ ही साथ लीगेंड के ऊपर. इन केस यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 then we can have D2sp3 और sp3d2 hybridization. दोनों ही केस में the shape will be octahedral. While if the complex is having coordination number 4 then या तो hybridization होगी DsP2 और it can be sp3. In case अगर hybridization DsP2 है then the shape will be square planar. While in case of sp3 hybridization the shape or geometry will be tetrahedral. For valence bond theory, you should remember few things. First, you should know how to calculate the coordination number. Secondly, you should know how can we calculate the oxidation number of central metal atom or ion. Then you should also know how to write the electronic configuration of metal and metal ion, especially for 3D series. Then the ligands like ammonia, CO, Cn-, En. En mean ethylene diamine and NO2-. You should remember these ligands are strong field ligands. And in case of strong field ligands, we have pairing of electron. Now you must be thinking ये strong field ligand क्या होते हैं या ये pairing of electron क्या होती है. तो ये जब आप आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी. Then you should know that ligands like H2O, F-, Cl-, Br-, I-, OH- and oxalate ion. These are weak field ligands, and in case of weak field ligands we do not have any pairing of electron. तो यहाँ पे आपने इतना याद रखना है कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं और कौन से लिगेंड वीक फील्ड है. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और जो वीक फील्ड लिगेंड है वहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी. अब कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं या कौन से वीक फील्ड हैं इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा. इफ लोन पेयर जो है नाइट्रोजन या कार्बन की तरफ से हो रहा है मेटल को देन दे विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. लेकिन अगर लोन पेयर डोनेशन ऑक्सीजन या हेलाइड से हो रही है देन दे विल बी वीक फील्ड लिगेंड्स. देन एक और चीज पूछी जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो अगर आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात होती है देन इट मींस दे आर आस्किंग वेदर इट इज अ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना. तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करेंगे. मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से लिखा जाता है एंड म्यू इज इक्वल टू √n+2 जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन.
Firstly, we will discuss valence bond theory for coordination number 6. तो coordination number 6 के लिए भी आप कुछ point याद रखेंगे. First is coordination number 6 में we can have D2sp3 hybridization or we can have sp3d2 hybridization. और हाइब्रिडाइजेशन चाहे D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों ही केस में शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल. लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो यहाँ पे अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं. n-1d ऑर्बिटल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. अब आप सोचेंगे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. देन अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d2 है, देन यहां पे अगर आप नोटिस करें बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है. सो इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है उन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. और आउटर ऑर्बिटल जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो यहाँ पे भी ये लो स्पिन या हाई स्पिन का मीनिंग जो है ये आपको आगे क्लियर होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे तो यहाँ पे भी आप ये चीज याद रखिएगा कि NH3CO CN- EN and NO2- ligands, these are strong field ligands. और strong field ligand के केस में we have pairing of electron, while ligands like H2O, F-, Cl-, Br-, I-, OH- and oxalate ion, they are weak field ligands. और वीक फील्ड लिगेंड्स में कोई भी पेयरिंग नहीं होती है. तो आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में वी हैव पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, while in case of weak field ligand we do not have pairing of electron. Now we will take few examples of complexes and we find out type of hybridization, geometry, magnetic properties, type of complexes and magnetic moment of these complexes by using valence bond theory. So first example is the complex CrNH3 6 with total charge on the complex +3. तो यहाँ पे अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगी या sp3d2 होगी. मीन या तो अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज होंगे या बाहर वाले दो d ऑर्बिटल यूज होने चाहिए. सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल. तो यहाँ पे मेटल क्या है, क्रोमियम. जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम का तो इट केम्स आउट टू बी +3. तो अब हम अगले स्टेप में क्रोमियम +3 की कन्फिगुरेशन लिखेंगे. बट अगर आपको याद हो ट्रांजिशन मेटल में भी मैंने बताया था कभी भी हम मेटल आयन की कन्फिगुरेशन को डायरेक्ट नहीं लिखते. सबसे पहले न्यूट्रल मेटल एटम की कन्फिगुरेशन लिखी जाती है. तो यहाँ पे हम पहले क्रोमियम की कन्फिगुरेशन लिखेंगे और उसकी कन्फिगुरेशन आई 3d5 4s1. देन वी विल राइट द कन्फिगुरेशन ऑफ क्रोमियम 3+. तो क्रोमियम 3+ की जो कन्फिगुरेशन है वो है 3d3. यहाँ पे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड ऑल्सो बाहर वाला जो 4d ऑर्बिटल है वो भी खाली है. अगले स्टेप में हम ये सोचेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे 2d खाली होने चाहिए. तो सबसे पहले हमारा ध्यान अंदर वाले d ऑर्बिटल्स पे होना चाहिए. क्या अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली हैं?
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3d ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल खाली हैं। इट मीन्स ये अंदर वाले d ऑर्बिटल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये खाली ना होते तो क्या करते, वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली मिल गए हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे क्रोमियम 3+ में हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास 3d रह जाएंगे 3 ऑर्बिटल। बाकी जो 3d के 2 ऑर्बिटल्स थे जो खाली थे वो हाइब्रिडाइज हो गए, और हाइब्रिडाइज होने के बाद दे फॉर्म d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देन इन द कॉम्प्लेक्स, जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास 6 अमोनिया है, तो वहां पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d में वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन, while in d2sp3 hybrid orbitals we will have 6 lone pair from 6 NH3। तो जो 6 लोन पेयर हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। जब एग्जाम में आएगा तो अगर आप ये जो नीचे 2 स्टेप्स हैं अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी चलेगा, आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन दिखा दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ इतना दिखा सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लगा कि ये जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3 एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। इसमें हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आपने देखा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, 3d ऑर्बिटल में। तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक। एंड बिकॉज अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, सो इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब अगले स्टेप में हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला तो आएगी 3.87 बोर मैग्नेटॉन। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी हम यही देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन या तो होगी d2sp3 या होगी sp3d2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आने के बाद हम Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके लिए हमें पहले न्यूट्रल Fe की लिखनी पड़ेगी। सो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d6 4s2। उसके बाद वी विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आयरन में से, पहले 4s से रिमूव होंगे फिर 3d से रिमूव होंगे। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d5। अब हम देखेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है या तो d2sp3 होनी चाहिए या sp3d2 होनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो या तो अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली होने चाहिए या बाहर वाले। लेकिन आपको बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं क्या अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली हैं। तो यहाँ पे अगर आप Fe3+ का केस देखें तो अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं हैं। सो वी विल पुट नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये होगा, क्या अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा खाली तो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। तो यहाँ पे हम अब लीगेंड को देखेंगे। तो लीगेंड हमारा है Cn-। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में पेयरिंग इज पॉसिबल। सो इट मीन्स कि इस केस में पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये बाकी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से दो अंदर वाले d ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे एंड वी विल हैव d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद Fe3+ के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3d ऑर्बिटल्स में। बाकी d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं they will be utilized for accepting the lone pair from the ligand। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, जबकि d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में we have 6 lone pair from Cn-। तो यहां पे हमारे 6 लोन पेयर आ जाएंगे। तो एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़े, तो आप अगर ये वाले स्टेप्स लिख देंगे तो भी काफी है। आफ्टर दिस हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे और हम लिखेंगे कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3 एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कभी भी अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होती है सो शेप हमारी होती है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट अगर आप देखें, जब हाइब्रिडाइजेशन हुई, जब पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि पेयरिंग होने के बाद ही हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। देन बिकॉज अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। तो यहाँ पे लो स्पिन का मतलब आप समझिएगा, अगर आप Fe3+ आयन को देखें, फ्री Fe3+ आयन, जब उसके साथ कोई लीगेंड नहीं था, तो इसमें कितने लोन पेयर थे? इसमें थे 5 लोन पेयर। 5 लोन पेयर का मतलब है इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी स्पिन ओनली फॉर्मूला से, वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आनी चाहिए थी। बट कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब हमारे पास कितने हैं? सिर्फ एक है। तो इसका मतलब हुआ इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो कम आती है। अदरवाइज अगर आप देखें Fe+3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें भी Fe3+ आयन प्रेजेंट है। तो इसलिए इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बिकॉज पेयरिंग की वजह से इसकी स्पिन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आपको इसी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी पड़े तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे और n की वैल्यू 1 के बराबर लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे? बिकॉज हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब हमारा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है। अभी जो पहले किया था वो भी आयरन का कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखें कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज था -3 और यहाँ पे चार्ज है -4। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी होने वाली है d2sp3 और इट कैन बी sp3d2। फिर हम अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आयरन का। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। अब हम Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे। फॉर राइटिंग द कन्फिगुरेशन फर्स्ट वी विल राइट द कन्फिगुरेशन ऑफ न्यूट्रल आयरन एटम। तो न्यूट्रल आयरन की कन्फिगुरेशन होती है 3d6 4s2। आफ्टर राइटिंग दिस हम क्या करेंगे? Fe+2 की कन्फिगुरेशन लिखेंगे। तो हमारी Fe+2 की कन्फिगुरेशन आ जाएगी 3d6। जब हमारी कन्फिगुरेशन आ गई तो अब हम दोबारा से सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मींस हमें 2 d ऑर्बिटल्स खाली चाहिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम अंदर वाले d ऑर्बिटल्स को ही देखेंगे कि क्या हमारे पास अंदर वाले
2 d ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे अंदर वाले d ऑर्बिटल्स खाली नहीं हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या वो खाली हो सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा खाली हो सकते हैं अगर पेयरिंग हो जाए। खाली होंगे अगर पेयरिंग होगी, और पेयरिंग कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। तो अब हम लिगेंड को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिगेंड है Cn-, और Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इट मीन्स यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो इट मीन्स इस केस में पेयरिंग होगी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हो जाएंगे, और हमारे अंदर वाले d ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? एम्प्टी हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। आफ्टर दिस अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन के बाद Fe2+ के पास 3 3d ऑर्बिटल्स होंगे, बाकी जो 6 होंगे दे विल बी D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और 3d में we have 6 इलेक्ट्रॉन। और ये जो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं they will be utilized for accepting the lone pair from the ligand। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में 3D में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा। बाकी जो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वहां पे हमारे 6 लोन पेयर्स आएंगे फ्रॉम 6 Cn-। तो इस तरह से आपने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स में हमारी हाइब्रिडाइजेशन हुई D2sp3। तो आप सिर्फ पहले स्टेप्स ही लिख दीजिए, नीचे वाले नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन तक लिख दीजिए। देन वी विल राइट कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। सो इस वजह से ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो इट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायामैग्नेटिक। बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स में अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और मैंने पहले भी बताया था जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप देखें कि लो स्पिन कैसे हुए। अगर आप Fe2+ की बात करें, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी फ्री Fe2+ की, तो वहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, मतलब Fe2+, फ्री Fe2+, वो पैरामैग्नेटिक था क्योंकि उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। बट यही Fe2+ इन द कॉम्प्लेक्स में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसकी जो स्पिन है वो 0 हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, बिकॉज ये डायामैग्नेटिक है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी वजह से जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन्हें लो स्पिन कहा जाता है, क्योंकि पेयरिंग की वजह से इनकी मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाती है। आप इसी केस की बात करें Fe2+ जब फ्री था, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग हो गई, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक से क्या बन गया? डायामैग्नेटिक बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स COF6 3-। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें भी हमारा पहला स्टेप वही रहेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। सो इट मीन हाइब्रिडाइजेशन कैन बी D2sp3 और sp3d2। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है +3। अब हम कोबाल्ट +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे, बट उसके लिए हमें पहले किसकी कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी? न्यूट्रल कोबाल्ट की। तो इसकी कन्फिगरेशन आएगी 3d7 4s2। देन वी विल राइट द कन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+। तो इसकी जो कन्फिगरेशन है इट विल
came out to be 3d6. अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. इट मीन्स हमारे पास 2 d ऑर्बिटल खाली होने चाहिए. तो यहाँ पे हम दोबारा वही क्वेश्चन करेंगे कि क्या अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं हैं. फिर अगला हम क्वेश्चन पुट करेंगे, क्या अंदर वाले खाली हो सकते हैं. तो हमारा आंसर रहेगा खाली तो हो सकते हैं, लेकिन कब खाली होंगे, जब पेयरिंग होगी. और पेयरिंग कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है. तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे लीगेंड कौन सा है. तो लीगेंड है हमारा F-, और F- एक वीक फील्ड लिगेंड है, और इस लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती है. तो इट मीन्स इस केस में पेयरिंग नहीं होती है. अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये बाहर वाले 2 d ऑर्बिटल यूज करेगा और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2. सो हाइब्रिडाइजेशन के बाद कोबाल्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इसमें 3d में we have 6 electron and we have sp3d2 hybrid orbitals. और यहाँ पे मैंने 4d भी दिखा दिए क्योंकि 2 4d ऑर्बिटल्स हैं वो यूटिलाइज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में. तो वो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच गए और बाकी 4d जो हैं 3 ऑर्बिटल्स वो खाली हैं. सो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की, देन हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें वी विल हैव 6 लोन पेयर फ्रॉम 6f-. तो यहाँ पे हमारे लोन पेयर आ जाएंगे. तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे, अगर आप सिर्फ पहले वाला स्टेप लिखते हैं, ये वाला स्टेप, तो भी काफी है. देन वी विल राइट कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2. इस वजह से ज्योमेट्री क्या हुई, ऑक्टाहेड्रल. नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4. वैसे अगर आप देखें कोबाल्ट +3 में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई. सो इट इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. और यहाँ पे बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि पेयरिंग नहीं होती है, तो इसकी वजह से इट विल हैव हायर स्पिन एंड सो इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. अब हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे. तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे n की वैल्यू है 4, सो इट मींस इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी 4.90 बोर मैग्नेटॉन. मैं आपको 2 कॉम्प्लेक्सेस दूंगी और आपको दोनों कॉम्प्लेक्सेस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करते हुए ये पता लगाना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं, या इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है. मैंने आंसर भी साथ में लिखा है, हिंट भी दिया है, ताकि आपको ये सब निकालते हुए प्रॉब्लम्स ना हो. सो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो मैंगनीज का है साइनाइड आयन के साथ. तो यहाँ पे जो Cn- है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. सो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स में देयर विल बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल. इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक. देन इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आने वाली है 2.84. नाउ आपका सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो भी मैंगनीज का है, पर यहाँ पे जो लीगेंड है वो Cl- है. और Cl- जो है एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है.
इस वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है sp3d2 and geometry will be octahedral with 4 unpaired electron and it is paramagnetic in nature because यहाँ पे बाहर वाले d orbital यूज हो रहे हैं, so it will be outer orbital complex और it will be high spin complex और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आप अगर दोबारा इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो आप देखेंगे दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस मैंगनीज के हैं, लेकिन जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है जहां पे Cl माइनस जो है वो लीगेंट है, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है 4.90 है, जबकि जहां पे Cn माइनस लीगेंट है वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कम है 2.84। तो एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि किसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स बनता है क्लोराइड आयन के साथ, जहां पे Cl माइनस एज अ लीगेंट काम करता है, वहां पे हमारे पास पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आता है विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि अगर मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स Cn माइनस लीगेंट के साथ बनता है तो सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट आती है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। इट मींस ये जो है लेस पैरामैग्नेटिक है, जबकि मैंगनीज का वही कॉम्प्लेक्स अगर Cl माइनस के साथ बनता है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आती है। क्यों? तो आप इसका भी आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 भी हो सकती है और इट कैन बी sp3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे मेटल के पास, सो इट मीन 4 ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 होगी या फिर sp3 होगी। दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में आप देखें, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आने वाले हैं। सो अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है देन ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है देन ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे भी आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर लीगेंट NH3 CO Cn En या NO2 है, मतलब लीगेंट ऐसा है जहां से लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम या तो नाइट्रोजन है या कार्बन है, ये सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक की फॉर्म में बता रही हूँ, तो वो लीगेंट जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होंगे। और अगर लीगेंट H2O F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस या ऑक्सलेट आयन होंगे, तो इसकी भी ट्रिक है कि अगर लोन पेयर ऑक्सीजन या हेलाइड आयन करते हैं देन दे विल बी वीक फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में यू विल हैव पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, while in case of weak field ligand no pairing of electrons is there. Now we will take an example of a complex. तो कॉम्प्लेक्स है हमारा NiCO होल 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है DsP2 या sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है इट मींस अंदर वाला एक d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, और अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली नहीं है तब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है यहाँ 0। तो हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s1। अब हम इसे ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिख देंगे।
तो निकल की कन्फिगुरेशन है 3D8 4s2, क्योंकि यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, 0 आया है। इट मीन्स ये न्यूट्रल फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो DsP2 हो सकती है या sp3 हो सकती है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे क्या d ऑर्बिटल खाली हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें d ऑर्बिटल भी खाली चाहिए, s ऑर्बिटल भी खाली चाहिए, और कम से कम 2 p तो खाली चाहिए। अगर d खाली ना हो तो तीनों p खाली चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल खाली नहीं है। दूसरी चीज ये है कि s ऑर्बिटल भी खाली नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे s ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं, d तो खाली नहीं हो सकता, s खाली हो सकते हैं, बट पेयरिंग की वजह से। तो यहाँ पे अब हम लीगेंड्स देखेंगे कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा लीगेंड है CO, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में वी हैव पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4s के जो इलेक्ट्रॉन है ये उठकर 3D ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे और पेयरिंग हो जाएगी, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर आप देखें, निकल के पास 3D ऑर्बिटल्स होंगे, एंड निकल के पास वी हैव sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 3D ऑर्बिटल्स में वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, और सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हैं, पेयर्ड हैं। देन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स में ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इट मींस इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। एंड सेकेंडली ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें हमारे पास 4 लोन पेयर आएंगे फ्रॉम 4CO। तो यहाँ पे हम लोन पेयर लिखेंगे, और आप इन सब में अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो भी सफिशिएंट है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन तक लिखिए एग्जाम में। देन वी विल राइट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, और इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट मींस इट विल बी डायामैग्नेटिक, और इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 आएगी, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है, इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, और ये एग्जांपल है जिंक के कॉम्प्लेक्स का। जिंक के इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 होगी, और इट कैन बी sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद वी विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। तो हम अब जिंक की कन्फिगुरेशन लिखेंगे, बट सबसे पहले वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ न्यूट्रल जिंक। तो जिंक की जो कन्फिगुरेशन आती है, इट इज 3D10 and 4s2. Now we will write the electronic configuration of Zn2+. So configuration आई 3D10। अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। इसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे, क्या अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक देखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे एक d ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल खाली नहीं है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या खाली हो सकता है, तो पहली बात खाली भी नहीं हो सकता, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता जिंक के साथ, चाहे कोई वीक फील्ड लिगेंड होता, ये खाली नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन आपकी रहेगी sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट तब आता है जब पेयरिंग के चांसेस हो। तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि d ऑर्बिटल पहले से ही भरा हुआ है, तो इसलिए पेयरिंग नहीं होती। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो जिंक के साथ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। सो हमारे पास जिंक के पास
3d ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें we will have 10 electrons while we have 4 sp3 hybrid orbitals. इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमारे पास 4 लोन पेयर आएंगे लीगेंड से. सो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लेक्स में we will have 10 electrons in 3d orbitals and in hybrid orbitals we have 4 lone pair from 4 ammonia. तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे. तो एग्जाम में अगर आप पहले वाले स्टेप्स ही लिख देते हैं तब भी काफी है. नाउ वी विल राइट द ज्योमेट्री. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री आएगी आपकी टेट्राहेड्रल and there is no unpaired electron, so it will be a diamagnetic complex. और diamagnetic complex में magnetic moment होती है 0. Now our next example is a complex of nickel. तो इस complex में भी सबसे पहले हम coordination number लिखेंगे. तो हमारा coordination number आएगा 4. It means hybridization can be dsp2 or it can be sp3. Now in our next step we will find the oxidation number of nickel. तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2. तो इस तरह से अब हम निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. बट उसके लिए फर्स्ट वी विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल निकल एटम. तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d8 4s2 और निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d8. अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए dsp2 और sp3. इट मीन एक d ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए. अगर d ऑर्बिटल खाली नहीं होता है देन हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. बट यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे क्या एक d ऑर्बिटल खाली है. तो यहाँ पे कोई भी d ऑर्बिटल खाली नहीं है. फिर हम देखेंगे क्या एक d ऑर्बिटल खाली हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि खाली तो हो सकता है पर पेयरिंग के बाद. और पेयरिंग कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होता है. तो यहाँ हम लीगेंट को चेक करेंगे. लीगेंट हमारा है Cn- जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट के केस में वी हैव पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है. और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी dsp2. और हाइब्रिडाइजेशन के बाद निकल के पास 4 3d ऑर्बिटल बनेंगे जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. बाकी dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. इन dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमारे पास लोन पेयर आएंगे फ्रॉम द लीगेंड्स बिकॉज 3 4p में से 2 हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज हो गए और एक वैसे ही बच गया. सो नाउ इन द कॉम्प्लेक्स हमारे पास 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. while in the hybridized orbital we have 4 lone pair from 4 Cn-. और इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हमारे लोन पेयर आ जाएंगे. और एग्जाम में हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन तक ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन शो कर दीजिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उससे नीचे वाले ऑर्बिटल्स मत बनाइए. सो अब हमें पता लग गया हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है. dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हमारी ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर एंड बिकॉज वी हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट विल बी अ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे देन इट केम्स आउट टू बी 0. Now I will give you 2 complexes. उन complexes में you will apply the valence bond theory and find out the type of hybridization, number of unpaired electron, magnetic properties and magnetic moments.
तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है इट इज NiCl4 2-। तो इस कॉम्प्लेक्स में Cl- इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, जिसकी वजह से देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका रिजल्ट आएगा देयर विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन and geometry is tetrahedral with 2 unpaired electron, so it will be paramagnetic, और इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 2.84 बोर मैग्नेटॉन। इसी तरह से आपने अगले कॉम्प्लेक्स की भी निकालनी है FeCl4 2-। तो इस केस में Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन आपकी आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो आप ये चेक करिएगा कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशन। तो पहली लिमिटेशन इसकी यही थी। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज स्पेसिफिक कलर। तो कलर क्यों शो करते हैं उसकी कोई एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी ने नहीं दी। एंड इट ऑल्सो अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसने ये तो कहा कि इन लिगेंड से पेयरिंग होगी, इनसे पेयरिंग नहीं होगी, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाई दीज लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड या वाई दीज लिगेंड आर वीक फील्ड लिगेंड्स। And this theory could not explain the existence of inner orbital and outer orbital complex. Mean pairing होने के बाद inner orbital या outer orbital complex क्यों बनते हैं, क्यों अंदर वाले d orbital यूज हो रहे हैं कुछ केसेस में और क्यों बाहर वाले d orbitals यूज होते हैं इन अदर केसेस। आई होप आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के यू विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंगनीज के दो कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है MnCn6 3-। इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट जो है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, while in second complex MnCl6 3-, it is paramagnetic with 4 unpaired electron। तो इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे आपको हिंट दे रही हूँ कि जो पहला कॉम्प्लेक्स है मैंगनीज का उसमें Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड is responsible for pairing of electron in 3d orbitals, while जो Cl- है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती है। तो आप इसी हिसाब से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करेंगे और ये जो स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें लिखी हैं इनको आप प्रूव करेंगे। देन इन सेकेंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पहले की तरह ही है, इसमें आयरन के कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। बोला है कि जो पहला कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3- वाला, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, वाइल जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है FeF6 3-, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी और ये पैरामैग्नेटिक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द हिंट कि जो Cn- है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी, जबकि जो F- है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक एक्सेप्शनल केस आता है। तो पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं COF6 3-, ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि
CO C2O5 3 इज डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है COF6 3 ये पैरामैग्नेटिक आएगा जब आप F- को वीक फील्ड लिगेंड लेके चलेंगे। लेकिन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोबाल्ट का ऑक्सलेट के साथ, वो डायामैग्नेटिक तभी आएगा जब ऑक्सलेट आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन आप कहेंगे अभी तो आपने पीछे बताया कि ऑक्सलेट एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो मैंने बिल्कुल ठीक बताया कि ऑक्सलेट एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आता है, वो आता है कोबाल्ट के साथ। ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है विद ऑक्सलेट, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो आप सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स के लिए मान के चलेंगे कि ऑक्सलेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, एक मैंगनीज का दिया है, एक आयरन का दिया है, एक कोबाल्ट का दिया है। और कोबाल्ट का कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है? जो कि ऑक्सलेट के साथ बनता है, और ऑक्सलेट यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसी तरह से मैंगनीज के साथ Cn- लिगेंड्स है, आयरन के साथ भी Cn- लिगेंड्स है। तो इट मीन्स तीनों ही केसेस में वी हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यही इन्होंने पूछा है कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन केसेस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है, जबकि पहले दो पैरामैग्नेटिक हैं और लास्ट वाला जो है वो डायामैग्नेटिक है। तो आप इस क्वेश्चन में भी Cn- और C2O4 2- मतलब ऑक्सलेट आयन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलिएगा। ऑक्सलेट को सिर्फ इसी कॉम्प्लेक्स के केस में, मीन कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के केस में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के चलना है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, एक मैंगनीज का है, एक आयरन का है, एक कोबाल्ट का है। तीनों कॉम्प्लेक्सेस को बोला है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ये पैरामैग्नेटिक है। जो पहला मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयरन के कॉम्प्लेक्स में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने इस स्टेटमेंट को भी प्रूव करना है बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो आप इसमें Cl- F- को वीक फील्ड लिगेंड मान के चलेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती है। Now next question is the spin only magnetic moment of MnBr4 2- is 5.9 Bohr magneton. Predict the geometry of the complex. अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3 बिकॉज Br- इज अ वीक फील्ड लिगेंड, और इस तरह से ज्योमेट्री आपकी आने वाली है टेट्राहेड्रल। यहाँ पे स्पिन दी हुई है, स्पिन अगर नहीं भी दी होती, सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिया होता, तब भी हम ज्योमेट्री निकाल लेते, लेकिन स्पिन दे रखी है, इसका मतलब ये है कि स्पिन जो है 5.9 है, मीन इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वो 5.9 बोर मैग्नेटॉन आएगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंगनीज +2 में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री स्टेट में भी, और जब आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आएंगे Mn2+ को, तो भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इट मींस पेयरिंग नहीं हुई। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कि NiCN4 2- आयन जो है ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स है,
ये डायामैग्नेटिक है, while NiCl4 2- ion is having tetrahedral geometry and it is paramagnetic in nature. तो यहाँ पे आप सेम हिंट यूज करेंगे कि Cn- जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, while जो Cl- आयन है एज अ लिगेंड इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड और इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में भी ये सेम निकल के दो कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पहला कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2- ये पैरामैग्नेटिक है जबकि NiCO4 इज डायामैग्नेटिक, जबकि दोनों की ही जो शेप है या जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। तो जब आप दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, पर आप ध्यान रखेंगे कि जो Cl- है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है जबकि जो CO है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देन अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि FeH2O होल 6 + 3 इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक whereas FeCN whole 6 3- is weakly paramagnetic. Why? तो इसमें भी जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वाटर है ये वीक फील्ड लिगेंड है जबकि जो Cn- है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाने के बाद जब आप अपने आंसर को दोबारा से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब वाटर एज अ लिगेंड काम करता है तब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, जबकि Cn के केस में पेयरिंग हो जाती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं एंड इट बिकम वीकली पैरामैग्नेटिक। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन। तो यहाँ पे पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि अगर हेक्सासाइनो आयन होगा, यहाँ पे हेक्सासाइनो आयन का मतलब ये है कि ये भी मैंगनीज का ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मैंने सेम लैंग्वेज वैसी ही लिखी है। हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 आयन, ये भी वही सेम आयन है, तो लैंग्वेज मैंने वही रखी है ताकि जो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आप यहाँ पे देख सकें। तो क्योंकि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हेक्सासाइनो आयन दिया हुआ है तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो वो ऊपर वाले सेंट्रल मेटल आयन की ही बात कर रहे हैं कि अगर हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन होगा तो उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर ये हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 आयन होगा तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको भी आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी आप मान के चलेंगे कि जो वाटर होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है जबकि जो साइनो ग्रुप होता है Cn- ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नाउ इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव टू एक्सप्लेन कि जो CONH3 होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स है ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जबकि NiNH3 होल 6 2+ एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें भी आप वैलेंस बॉन्ड थियरी यूज करेंगे एंड एक्सप्लेन इट, तो आप करके देखिएगा। देन अगला क्वेश्चन आता है प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्क्वायर प्लेनर PTCN होल 4 2- आयन। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर नहीं भी लिखा होता तब भी आप आंसर निकाल सकते थे। Cn- को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलेंगे और यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको पता लग जाएगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। देन आता है डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपने यूज करना है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब है आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, आपने शेप निकालनी है या ज्योमेट्री निकालनी है, आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है, आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और आप चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो मेन है आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं आपने इन्हें हाइब्रिडाइजेशन बताती हैं
ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स था आयरन का उसमें Cn है, तो Cn को हम क्या मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में F माइनस है, तो F माइनस को हम क्या मान के चलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। एंड इन द थर्ड, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है विद ऑक्सलेट आयन। तो यहाँ पे ऑक्सलेट जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलेंगे, ये एक एक्सेप्शनल केस है। मैंने आपको बताई कि ऑक्सलेट वैसे वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन जब वो कोबाल्ट के साथ इस कॉम्प्लेक्स में होता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की फॉर्म में बिहेव करता है। देन COF6 3-, तो इसमें भी आप F- को वीक फील्ड लिगेंड मान के चलेंगे। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि वाई द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है निकल का वो डायामैग्नेटिक है। तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज like the video and subscribe the channel. Thank you and please do subscribe the channel.